नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समेत कई एमएलए पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि विधानसभा के एक दिन के सेशन में शामिल 2 कांग्रेस के एमएलए पॉजिटिव मिले हैं। कुलबीर जीरा और निर्मल सिंह संक्रमित पाए गए हैं, जो कि सीएम के संपर्क में भी आए हैं। उसके अलावा कई और विधायकों के साथ इनकी मुलाकात हुई है। पॉजिटिव एमएलए 2 कुलबीर जीरा और निर्मल सिंह, जिसके बाद ये दोनों क्योंकि कैप्टन के संपर्क में आए हैं, इसलिए 7 दिन के लिए कैप्टन ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। संपर्क में आने वाले मंत्री और विधायक भी आइसोलेट हो गए हैं। विधानसभा में बता दें आपको कि सीएम सहित करीब 50 विधायक मौजूद थे और दोनों विधायकों की कोरोना टेस्टिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सेशन से पहले जो रैपिड टेस्टिंग करवाई गई दोनों की, तो उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो अब जो सवाल टेस्टिंग पर पहले विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे, सीधे तौर पर अब सरकार के अपने विधायक भी उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठा रहे हैं। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो नपिंदर, फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की हालत है, क्या दोनों एमएलए जो पॉजिटिव आए हैं उनमें अब किसी तरह के क्या सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, या पहले जैसे कई विधायक बता रहे थे कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं है? देखो, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਰੈਪਿਡ ਉਸਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100% ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਰਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਰਾ ਵਾਕਈ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ सके कि कोई और भी पॉजिटिव है या फिर उन्होंने का बचाव होया। बिल्कुल नपिंदर, तो टेस्टिंग अब सवालों के घेरे में जरूर है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले पॉजिटिव रिपोर्ट अगर बात की जाए तो परगट सिंह विधायक हैं, उनकी भी आई थी, लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद ही वो दोबारा से टेस्ट करवाते हैं तो उसमें रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आती है। तो इसी तरह कुलबीर जीरा की रिपोर्ट पहले जो नेगेटिव आई रैपिड टेस्ट के दौरान, उसके बाद जो उन्होंने पहले 25 अगस्त को टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट पेंडिंग थी, वो रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। और उसके बाद प्राइवेट लैब जो उन्होंने उसके बाद टेस्ट करवाया उसमें भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो जाहिर सी बात है कि अब रैपिड टेस्टिंग सवालों के घेरे में जरूर है। और वहीं अगर बात की जाए पहलवान विनेश फोगाट की, तो वो भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। जी हां, और उनके साथ ही कोच ओम प्रकाश दहिया भी पॉजिटिव पाए गए हैं। विनेश फोगाट ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। दरअसल विनेश को आज खेल रत्न से नवाजा जाना था। कोच ओम प्रकाश द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चयनित थे। दोनों आज नहीं हो पाएंगे अवार्ड सेरेमनी में शामिल, क्योंकि अवार्ड सेरेमनी में जाने से पहले जो टेस्ट इन्होंने अपने करवाए उसमें दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो पहलवानों को भी अब जकड़ना शुरू कर दिया है, कोरोना ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और कोच ओम प्रकाश दहिया भी संक्रमित मिले हैं। तो वहीं हरियाणा में अब वीकेंड पर लॉकडाउन नहीं होगा।
अब सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। जी हां, यानी कि शनिवार और रविवार को दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन इसकी बजाय अब सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। हरियाणा सरकार ने ये नए आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लागू होंगे ये नए आदेश। दरअसल लगातार व्यापारियों की ओर से ये कहा जा रहा था कि वीकेंड पर जो ग्राहक हैं वो ज्यादा आते हैं, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन होने के कारण लोग बाहर नहीं निकलते और सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है, जो पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहा है कोरोना के कारण। तो ऐसे में अपील भी की जा रही थी लगातार। तो विचार करने के बाद ये हरियाणा सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन दुकानें 2 दिन बंद रहेंगी, सोमवार और मंगलवार को। तो कोरोना के कारण ये लगातार प्रशासन की ओर से भी आए दिन कोई ना कोई नया फैसला लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 पर कोरोना का पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातों के जरिए आपको बताते हैं किस तरह के हालात है। हरियाणा में कोरोना के केस 60,000 के पार हो गए हैं। 24 घंटों में 1,298 केस सामने आए हैं और कुल आंकड़ा जो है वो 60,596 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में अगर बात की जाए तो 126 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 115, पानीपत में 104, सोनीपत में 100, रेवाड़ी में 54, हिसार में 110, करनाल में भी 100, पंचकुला में 56, अंबाला में 80, कुरुक्षेत्र में 76, रोहतक में 63, यमुनानगर में 81, महेंद्रगढ़ में 53 नए मरीज सामने आए हैं और प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 15 मौतें हुई हैं और मरने वालों की कुल संख्या 661 हो गई है। करनाल में 3 मौतें हुई हैं, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी में 2-2 मौतें हुई हैं, फरीदाबाद, रोहतक और हिसार में 1-1 जान गई है। कुरुक्षेत्र, सिरसा और फतेहाबाद में भी 1-1 मरीज ने दम तोड़ा है। अगर बात की जाए रिकवरी की तो हरियाणा का रिकवरी रेट बाकी प्रदेशों के मुकाबले तेजी से बढ़ भी रहा है। हरियाणा में 49,710 मरीज ठीक भी हो गए हैं और प्रदेश में अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 10,225 एक्टिव केस इस समय प्रदेश में हैं। तो किस तरह के हालात हैं जान लेते हैं। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो धर्मवीर, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आंकड़ा 60,000 के पार हो गया है। खासतौर से दिल्ली से सटे जो शहर हैं वो लगातार कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नया फैसला लिया गया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा, पर सोमवार और मंगलवार को दुकानें जरूर बंद रहेंगी। बिल्कुल, देखिए, पहले सरकार ने ये कहा था कि वीकेंड लॉकडाउन होगा और क्योंकि जो कोरोना है वो लगातार बढ़ रहा है हरियाणा में, तो उसी के चलते ये फैसला लिया गया था। लेकिन उसके बाद जगह जगह जो है इस सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ। व्यापारी जो है वो लगातार ये बात कह रहे थे कि क्योंकि शनिवार और इतवार को ही ग्राहक सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए इस दिन जो है कम से कम वीकेंड लॉकडाउन ना किया जाए, किसी और दिन किया जाए, क्योंकि पहले कोरोना के चलते जो है काफी नुकसान व्यापारियों का हो चुका है। तो ये अपील लगातार व्यापारी कर रहे थे। अब सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी अपील को सुना और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन एक तरह से रखा जाएगा और उसमें जो दुकानें हैं उनको बंद रखा जाएगा। पहले जो फैसला लिया गया था उसमें सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी शामिल थे, जिसमें ये कहा गया था कि वो भी बंद रहेंगे। लेकिन अब जो नया फैसला आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ दुकानें जो है वो बंद रखी जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स जो है वो बंद रखे जाएंगे सोमवार और मंगलवार को। बाकी दिन जो है ये सभी चीजें खुलेंगी, किसी तरह कोई पाबंदी नहीं होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ फैसला इसीलिए लिया गया है कि लगातार जो मामले बढ़े हैं, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद खासतौर से जो दोनों जिले हैं जो कि दिल्ली से भी सटे हुए हैं, एनसीआर का हिस्सा है, बड़े शहर हैं दोनों हरियाणा के, यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज जो है वो सामने आए हैं। गुरुग्राम में अगर मैं बात करूं तो अब तक 11,555 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 10,450 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 132 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो लोग हैं वो अभी भी संक्रमित हैं, जो कि अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार व्यापारियों की ओर से जो मांग की जा रही थी उसी को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। तो वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटे जिलों में मामले लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं, खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आज मुकम्मल वीकेंड लॉकडाउन है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन इसी तरह जारी रहेगा। 2 दिन सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी, गैर जरूरी सामान की दुकानें
शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी पूरी तरह से। और इसी के साथ बेवजह घर से निकलने वालों पर भी पुलिस सख्ती करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जगह जगह नाके पुलिस की ओर से लगाए गए हैं, चालान भी काटे जा रहे हैं। जो लोग बिना काम के लॉकडाउन की उल्लंघना करते नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो पंजाब में किस तरह के हालात हैं, 10 बड़ी बातों के जरिए बताते हैं आपको। पंजाब में कोरोना के केस 50,000 के करीब पहुंच गए हैं। 24 घंटों में 1500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। जालंधर की बात की जाए तो 211 मामले, लुधियाना में 140 नए मरीज, गुरदासपुर में 182, पटियाला में 109 नए केस, फरीदकोट में 115, फिरोजपुर में 84, अमृतसर में 81 और मोहाली में 85 नए केस सामने आए हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 51 मरीजों की जान भी गई है। सबसे ज्यादा मौतें अमृतसर और लुधियाना में हुई हैं। अमृतसर में 12 और लुधियाना में 11 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसी तरह पटियाला, जालंधर में 5 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब में 49,378 कुल मामले हो चुके हैं। और अभी अगर एक्टिव मामलों की बात की जाए तो प्रदेश में 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो रिकवर भी 33,000 तक मरीज जो हैं वो हो चुके हैं। 1,307 मौतें भी हो चुकी हैं और 559 मरीजों की हालत अभी गंभीर भी बनी हुई है। तो वहीं बात करते हैं अब मौसम के मिजाज की। शिमला की बात करते हैं, जहां रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और इस बारिश से शिमला को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सड़कें बदहाल हैं, बिजली पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार जारी हैं और अभी भी मौसम का मिजाज बिगड़े रहने की ही संभावना बनी हुई है। और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से मदद की अपील भी की है। राजधानी शिमला में भले ही बारिश पिछले साल की अपेक्षा कम हो रही है, लेकिन कम बारिश के बावजूद अब तक शिमला को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। जिला प्रशासन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में अब तक करीब 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए से नुकसान की भरपाई भी कर दी गई है। बावजूद इसके अभी तक नुकसान की प्रक्रिया लगातार जारी है। लगभग 3 करोड़ 50 लाख का जो है लॉस अभी तक हुआ है, उसमें से जो भरपाई अभी तक जो हमने वितरित की है वो लगभग 2 करोड़ 40 लाख की है। अभी बारिश जो है पूरी तरीके से जितनी पिछले साल थी उस प्रकार से अभी नहीं हुई है। स्थिति बिल्कुल जो है नियंत्रण में है। डीसी के मुताबिक सड़क, बिजली, पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। बावजूद इसके वक्त वक्त पर इनकी भरपाई का काम भी जारी है। लोगों से अपील भी है कि अगर उनके क्षेत्र में किसी भी हादसे की संभावना है तो इसकी जानकारी प्रशासन के टोल फ्री नंबर 1077 पर दें, ताकि वक्त रहते किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कम बारिश होने के बावजूद भी हिमाचल में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। फिलहाल किस तरह का मौसम का मिजाज है देख लेते हैं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो विचित्र, किस तरह का मौसम का मिजाज है, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से हिदायतें जारी की गई हैं? देखिए अमृत, जैसा कि मैं आपको लगातार ये बताता आया हूं कि लगातार पिछले 1 महीने से जो है वो कांगड़ा घाटी, खासतौर पर अगर कांगड़ा घाटी की बात करें तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार जारी है। यानी सुबह, शाम और दोपहर के वक्त जो है वो ये मूसलाधार बारिश जो वो हो ही रही है। ऐसे में पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि पूरे प्रदेश भर में कांगड़ा जो है वो सबसे बड़ा जिला है, तो यहाँ पर भी नुकसान जो होता है वो भी सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पर नदी, नाले और खड्डे भी सबसे ज्यादा है। मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है। तो ऐसे में जो है बहुत सारा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में हर बार जो है वो प्रशासन हालांकि दावे भी करता है कि लोगों जो मानसून आएगा तो उससे पहले वो अलर्ट हैं और तमाम प्रकार की तैयारियां मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं। बावजूद इसके हर साल यहाँ पर नुकसान जो होता है वो करोड़ों में होता है और सबसे ज्यादा होता है अमृत। और इस बार भी कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो इसी बारिश में हो चुका है। कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए मेन हाईवेज, लिंक्स हाईवेज की को, तो वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो
कांगड़ा और चंबा का जो बाया हटली होते हुए जो मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो भी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। एक हफ्ते से वहां पर कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है और अगले एक हफ्ते तक गाड़ी जाने की कोई संभावना नहीं है, यानी बड़ी बसेज और जो दूसरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वहां से नहीं गुजर सकता। और इसके साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि मैकलो से लेकर जो कांगड़ा और चंडीगढ़ हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो भी जो है वो कोतवाली बाजार के बिल्कुल साथ लगते, जहां दलाई लामा जो तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु है दलाई लामा, वहां जो उस मंदिर में जो लोग जाते हैं वो भी नहीं जा पा रहे, इसलिए क्योंकि वो मार्ग भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और साथ ही साथ नेशनल हाईवे को हुआ है। हाँ, वादियों के दीदार करवा देते हैं कि मौसम कैसा है, तो मौसम लगातार जो है वो इस तरह से बना हुआ है। देखिए आप सीधे साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार कैसे बारिश हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो इसी तरह से मौसम यहाँ रहता है। कांगड़ा घाटी में अभी भी देखिए कि किस तरह से बादलों का साया जो है वो अभी टला नहीं है। और हाँ, मौसम विभाग ने पहले ही बता रखा है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से ये आसार जो वो यहाँ पर रहने वाले हैं और इसी तरह से बारिश यहाँ पर होने वाली है। तो अभी कुछ ये जो संकट है वो टला नहीं है अमृत, और आगे और वक्त तक ये संकट आगे रहता है तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की जनता को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बादलों का साया जो है वो अभी भी कांगड़ा घाटी पर लगातार जो है वो बरकरार है। और नदी नालों की और खड्डों की बात करें तो वो भी लगातार सबाब पे हैं। जैसे ही बारिश होती है तो उसमें उफान पे रहती हैं और हम हर बार तस्वीरें भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में उठाकर जो है वो नदी नालों की तरफ चले जाते हैं। तो उनसे बार बार हिदायत और उनको बार बार प्रशासन की ओर से यही सलाह दी जाती है कि वो ऐसे मौके पर कम से कम जो है वो इस तरह का काम ना करें, वो नदी नालों और खड्डों की तरफ ना जाएं, ताकि जो है वो उनको जान जोखिम में डालनी पड़े, कोई दिक्कत परेशानी हो और उसको फिर जो वो प्रशासन को कोई एक्शन लेना पड़े। तो बार बार हिदायतों के बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन भी सख्त होगा और सख्त होने के मूड में भी है। और अभी आगे अगर बारिश मौसम विभाग कह रहा है कि अभी और आगे बारिश होनी है, तो अभी संकट जो है वो अभी टला नहीं है हमें। बिल्कुल, तो विचित्र अभी संकट टला नहीं है। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें आप धर्मशाला से देख सकते हैं लाइव। बेशक इस समय जो मौसम उनको साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब तक जैसे आपने बताया कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और विचित्र अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो खास तौर पर लैंडस्लाइड का खदशा भी उनकी ओर से जताया गया था और लोगों के खास तौर से अपील भी की गई थी कि जिन इलाकों में लैंडस्लाइड की संभावना है वहां पर ना जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमृत, ऐसा है कि हर बार इसी तरह से कहा जाता है। प्रशासन तो खैर दावा ही कर सकता है या फिर प्रशासन उनको एहतियात ही दे सकता है, लेकिन आम लोगों तक, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी दिनचर्या को मुकम्मल करना है, जो कि दिनचर्या के लिए बाहर निकलते हैं, तो उन लोगों को कैसे रोका जा सकता है, गाड़ियों को कैसे रोका जा सकता है। अब लैंडस्लाइड कहां से भी कहीं से भी हो सकता है। नेशनल हाईवे 154 की अगर बात करें तो वहां पर जगह जगह भूस्खलन होता है, जगह जगह लैंडस्लाइड होता है और कई बार तो गाड़ियां ध्वस्त हो चुकी हैं। आपने खुद अभी देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि एक बहुत बड़े ट्रक के ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया था और अचानक से लोगों की, वहां पे ड्राइवर और उनके साथी जो साथ में बैठे हुए थे, उनकी जान चली गई थी। तो ये हिमाचल है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और हाँ, अमृत, एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों का जो मिथ्स है, चूंकि देवभूमि है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो देवताओं के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं और खासतौर पर मौसम को लेकर भी ये देवताओं के ऊपर निर्भर करते हैं कि ये जो बारिश होती है वो नाग देवता की बदौलत ही होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर परंपराएं भी हैं, जिस तरह से कुर्ला कुर्ली की यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात की जाती है कि कुर्ला और कुर्ली जो एक पक्षी हैं, जो कि ये बारिश का दौर जब चलता है और वाकई में जब देखने को मिलता है तो कई बार उनकी जो मिथ्स और इनकी जो परंपराएं हैं अमृत, वो भी सटीक बैठती है कि कुर्ला जो है वो समुद्र की तरफ तो परंपराओं के साथ भी हमेशा खास तौर पर हिमाचल वासियों की ओर से जोड़ा जाता है मौसम के इस मिजाज को। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो धर्मशाला की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन पूरे हिमाचल की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। तो बरसात के मौसम में हर बार की एक नई कहानी है। पानी की निकासी का नहीं होना, हर बार ये दावे तो होते हैं, इस बार लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक बारिश होते ही दावों के झूठ से लोगों का सामना होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसकी तस्वीरें आपको बहादुरगढ़ से दिखाते हैं। देखने में भले ही ये आपको तालाब लग रहा हो, लेकिन ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि बहादुरगढ़ की सड़कों का हाल है। यहाँ की गलियों का, चौक चौराहों का करीब 15 दिन पहले यहाँ तेज बारिश हुई थी और तब से ही पटेल नगर और मामन विहार का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। बरसाती पानी को निकालने के लिए यहाँ पंप सेट भी लगाया गया,
लेकिन अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मेरा मकान सेंट थॉमस वाले रोड के ऊपर है, जिसके अंदर हर रोज रात को 2 फुट पानी अंदर घुस जाता है, क्योंकि सीवर लाइन रुकी हुई है यहाँ की। हमने पब्लिक हेल्थ में भी, कमेटी में भी, हुड्डा वालों को भी, सबको शिकायत भेज दी। सब के सब ये कह रहे हैं भाई साहब इसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। जो इसमें पीछे सारा सीवरेज का बैक प्रेशर मारता है और ये घड़ी परमानेंट भरी रहती है और उसमें मच्छर, दुनिया भर के मच्छर रहते हैं और बदबू इतनी फैली रहती है, रात को तो सो नहीं सकते। कृपा करके हमारी इस प्रॉब्लम का समाधान करें। बारिश के पानी से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए वार्ड पार्षद नीना राठी ने पंप सेट भी लगवा दिया। पानी की निकासी भी शुरू हो गई, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट ने परेशानी फिर से बढ़ा दी। अगले 2 दिन और सितंबर की शुरुआत में तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके कारण फिर से लोगों को बरसाती पानी से 2-4 होना पड़ेगा। पार्षद नीना राठी का कहना है कि पानी निकासी के इंतजाम किए गए हैं और लोगों को दिक्कतें नहीं आने दी जाएंगी। लोगों की समस्या सुनी गई और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जल्दी ही इसकी कोई स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी कि सभी कॉलोनियों का पानी निकाला जाए और निकासी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आगे लोग ऐसी परेशानी से ना गुजरें। हर बार बंद सीवर और खराब सिस्टम को दुरुस्त करवाने के लिए एक राशि जारी की जाती है। क्षेत्र के विकास और परेशानी को दूर करने के लिए लाखों करोड़ों के बिल पास किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी है कि लोग यूं ही परेशानियों के बीच जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहां जाती है यह विकास की राशि। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18।